जो सेकंड करा था, सेकंड वाज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for first order reaction K is equal to 2.303 over T log A naught by A. Okay, initial concentration of reactant divided by its final concentration. गगन करमन क्या गल है भाई, लेट क्यों? यार टाइम पे इनफैक्ट कोई भी लेट आंदा पूरा दोबारा तो स्टार्ट करना पै जांदा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कह रहा लेट क्यों अटेंड कर रहे हैं? सर वो चल नहीं रहा थी सर, लैपटॉप जो काम करते हुए। हाँ, चलो एनीवेज k is equal to 2.303 by t log a naught by a. आई थिंक लास्ट टॉपिक यही करा था। The half life find करनी है for first order reaction. Half life of reaction is half life for first order reaction. For first order reaction T half. Start करो at T is equal to T half. क्या हो जाएगा बच्चे? A is equal to A naught by 2. A is equal to A naught divided by 2. So substitute the value. K equal to 2.303 over T half log A naught divided by A naught by 2. A naught cancel. So we have T half equal to 2.303 over K log of 2. This is the expression for half-life for a reaction which follows first order kinetics. Main equation ही learn करनी है, but you can solve by substituting the value of log 2. आगे अगर solve करना है, T half is equal to 2.303. Value of log 2 is 0.3010 divided by K. I've substituted the value of log 2 and log 2 is 0.3010. ठीक है, so T half is equal to 0.693 by K.
Okay. For numerical purposes, you can use this value. This formula for integrated rate equation, this is for half-life, for a reaction which follows first order kinetics. अच्छा, एकम लेट क्यों था क्लास में? क्या हुआ? एकम गिल, मैंने लास्ट टाइम बोला थी बी रिस्पॉन्सिव, बोल क्यों नहीं रहा? फिर माइक प्रॉब्लम? माइक ऑन कर और बोल, ठीक है? जरूरी नहीं यार बार चैट करना, मेरे स्क्रीन होगी। चलो एनीवेज, I think we have not done the graphs for first order reaction. एक बार रिमाइंड करवा दो, लास्ट टाइम ग्राफ करे थे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आई नो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंफ्यूज हो रहा हूँ, करे थे या नहीं करे थे? एक बार चेक करो प्लीज नोट्स। बच्चे मेरी आवाज क्लियर नहीं है या आपके माइक किसी का भी नहीं चल रहा? फिर मैं सर नहीं करे थे ग्राफ्स, जी सर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स नहीं करे थे। नहीं करे थे, ओके ठीक है। हरनूर लेट क्यों है? सर कितने गए हुए सीगे, हुणे आया। चलो ठीक ठीक है, जस्ट लास्ट टाइम जो करा था वही रिवाइज करवाए हैं, और वी हैव ड्राइव्ड फॉर एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ जो ड्रॉ करना है दैट इज बिटवीन चल ग्राफ ग्राफ थिंग, चल x y, first graph is between rate एंड नहीं, रेट वाला सेकंड करेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ऑन एक्स एक्सेस टाइम t, y एक्सेस log of a, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ गेस करो जो लास्ट टाइम करे थे। फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूला इज k is equal to 2.303 over t log a by a naught by a, this. Convert this into
formula of equation of straight line, y is equal to mx plus c. हो जाएगा कन्वर्ट? kt no, t is y-axis, so t लिखो, t is equal to 2.303 over k log a naught minus log a. This. और t into k by 2.303 equal to log a naught minus log a. This is y log a, left hand side लेके आओ, y 1 second, log a is equal to minus k by 2.303 into t plus log a naught. Is it okay? यही है, किसका डिफरेंट आया है? साइन डिफरेंट है, एक बार चेक कर लो. माइनस k अपॉन 2.303 into t plus log a naught. Assign the symbols. Log a is y, minus k upon 2.303 is slope m, t is x, log a naught is intercept c. So जो ग्राफ ड्रॉ करेगा, ग्राफ कैसा आ जाएगा? Something like this, downward, and this point indicates log of a naught, log of initial concentration with slope. Slope of this graph will be minus k by 2.303. Check कर लो line. Is it okay? For first order reaction. ठीक है? Second graph जो आपने बनाना है, second graph is graph between concentration of reactant A into versus rate of reaction. Versus rate of reaction. Any guess for first order reaction क्या होएगा? Simple logic लगाना बच्चे. For first order reaction, rate is directly proportional to concentration of A raised to the power 1, order of reaction. So graph क्या हो जाएगा? This straight line.
passing from the origin. Okay, it will be a straight line passing from the origin. लास्ट ग्राफ है जो that is plotted between concentration, initial concentration, in fact, A naught and half-life for first order reaction. What is the expression of half-life of first order reaction? That is T half is equal to 0.693 by K. Formula dekho. From the formula, it is clear that half-life does not depend upon the initial concentration of reactant. So graph, it will be a straight line parallel to x-axis. ठीक है, जो तीनों ग्राफ हैं, all three graphs are for first order reaction. Compare कर लेना with zero order. ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं और 100% कहीं ना कहीं तो ग्राफ आएंगे ही आएंगे. प्रैक्टिस और भी करनी है, स्पेशली वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c, बार बार लिख के. ठीक है. अच्छा अर्शदीप, व्हाट इज हाफ लाइफ, मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? हेलो, अर्शदीप. है नहीं क्या तो क्लास में? माइक नहीं चलता. माइक नहीं चलता? माइक ले लो यार, अब कौन सा लॉकडाउन है, कोई छोटा मोटा. चलो तू ही बोल दे एकम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? So the time taken for the concentration of anything to be halved. To be half of its initial concentration. ठीक है. Yes, sir. So please याद रखना, if you start with A naught equal to 100, ठीक है, at T is equal to T half, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 100 by 250. दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ. अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाफ लाइव्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी half lives are required to reduce the concentration of reactant to 1/16 of its initial concentration. Options हैं 2 half lives, 1 half life, 4 half lives, 16 half lives. Question okay? How many half lives are required to reduce the concentration of a reactant to 1/16 of its initial concentration? You can start by taking A naught equal to 1 or 100.
कुछ भी वैल्यू ले लो, मैं ले रहा हूं इसे लेट ए नॉट इक्वल टू 1. हाउ मेनी हाफ लाइफ्स आर रिक्वायर्ड? सर आंसर 4 है। हाँ जी, आंसर इसका लेते बोले एक आंसर आया बच्चे, आंसर इज 4. कोई डिफरेंट ओपिनियन अदर देन 4? अगर ए बी 3, अच्छा ये मैंने सीक्वेंस कौन सी लिख दी, ए बी 3 5, वेरी गुड. सी, ये डी था, ठीक है. ए बी सी डी ई एफ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं. ए नॉट एज 1 एंड ए क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन इज A naught by 16. It's 1 by 16. How many half lives are required? Number of our half lives. देखो, during first half life, A naught, then during first half life, 1 changes to 1 half during first half life. ठीक है. During second half life, it changes to 1 by 4. During third half life, it changes to 1 by 8. During fourth half life, it changes to 1 by 16. So count kar lo, how many half lives are required? 4. Answer is 4. But एक direct formula है for calculating number of half lives. For calculating number of half lives, you have a formula 2 raised to the power n is equal to A naught by A. ठीक है, where n is number of half lives. N is number of half lives. ठीक है, पुट करके देख लो, चाहे आंसर 4 ही आएगा. 2 raised to power n. A naught is 1. A is 1 by 16, which makes it 2 raised to the power n equal to 16. 2 raised to the power n, 2 raised to the power 4, and n equal to 4. So number of half lives से भी calculate कर लो from formula, from simple logic. Answer is 4. ठीक है, यहाँ पे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का कोई पंगा नहीं है. ओके, फिर है क्वेश्चन. बट 3 और 4 करने हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट में करने हैं. क्वेश्चन इज फॉर द for a reaction which follows first order kinetics, means order of reaction is 1. Prove that number 1, T half is not T half, T
3/4 is 2 into T half. Number 2, T 99% is equal to 2 into T 90%, और सिंपली 90 भी लिख देते हैं. नंबर 3, T 99.9% is equal to 3 into T 90. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं. सॉल्यूशन पार्ट 2. T 99% equal to 2 into T 90%. बच्चे आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? नो सर. ओके, नहीं सर. ठीक है. मेरे इस में भी सिस्टम स्लो है, ये कलर नहीं चेंज हो रहे थे. T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90 से प्रूव करना है. फर्स्ट लिखो, लेट A नॉट बी 100. ठीक है, A नॉट 100 लेना है. सो दो पोर्शन में सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन. A नॉट 100 ले लें. फॉर T 99%. पहले तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है बच्चे? T 99%. इट मीन्स रिएक्शन इज 99% complete. Okay, reaction is 99% complete. So A क्या आ जाएगा? A is 100 minus 99. A is 1. Agree? Final concentration of reactant is 1 because 99% of reactant are converted into products. So we have integrated rate equation for first order reaction. Put karo. K is equal to 2.303 by T log A naught by A. This is the integrated rate equation. Substitute the values. K is equal to 2.303 by T 99% log A naught is 100 divided by 1. Okay, and what is log 100? 2.303 by T 99%. Log 100 is 10 raised to power 2. 2 log 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log 2. ठीक है, सुम्बुल ओके है? ठीक लिखा है? log 100 is 2. Is it okay? ठीक है. Yes, sir. चलो, on right hand side solve the equation for T 90.
For T 90%, A is 100 minus 10, 100 minus 90, 10, because now reaction is 90% complete. K is equal to 2.303 by T log A naught. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, 90 log A naught is 100, A is 10, log 10, and you know log 10 is 1. 2.303 by T 90. Get T 90. Make this equation 2. Right hand side देखो, right hand side of both the equations are same. Left hand side, sorry, right hand side equate हो जाएंगे. Compare करो from 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2, you have 2.303 over T 99% into 2 is equal to 2.303 by T 90%. Cancel कर दो. T 99% is equal to 2 into T 90. ठीक है बेटे, ड्राइव करना इजी है और होपफुली आ ही जाएगा, बट ट्राई टू मेमोराइज द रिलेशन. सेकंड हो गया, सेकंड मैंने सॉल्व किया है. सॉल्व फॉर फर्स्ट एंड थर्ड. वैल्यूज देखो, देखो प्रूव हो रहा है. ठीक लिखी है वैल्यूज. फर्स्ट थर्ड, पहले थर्ड ट्राई कर लो. मैं फर्स्ट को अल्टरनेटिव भी लिख रहा हूं. जो फर्स्ट है ना, दिस वन, फर्स्ट वन, इसे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट वन को ही. You can also solve for T 3 by 4 means 75% is equal to 2 into T 50%. 50 is T half. Okay, 75 clearly लिखो, 75. देखो एक बार चेक करो, हो रहा है सॉल्व. यस, हुआ किसी का? अरुणप्रीत, गगन, होया बच्चे?
हाँ जी, किसका होया? आर्यन, दर्शनूर, हरनूर, जैसिका, जशन, अनन्या, एनीवन? यस सर, थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया, मैच हो रहा है, 3 आ रहा है। यस सर। ठीक है। नमिशा, स्मृति, नो? सर हो गया। हो गया दोनों पार्ट? नहीं सर, एक हुआ है। Which one? हाँ जी, दोनों एकम डन। करमन, सर फर्स्ट पार्ट भी हो गया। फर्स्ट भी हो गया, चलो ठीक। चलो ठीक है, अगर नहीं पूछ रहे देन होपफुली हो ही गए होंगे दोनों। नहीं हुआ है किसी का, प्लीज आस्क। गगन हो गया? नेक्स्ट देखो फिर। क्वेश्चन इज T 87.5 is equal to X into T 50%. The value of X is one,
2, 3, 4. मैसेज कर दो या बोल के बता दो. वैल्यू ऑफ x इज. हेलो सर। हाँ जी. सर आंसर 3 है। सर पिछले वाला होया नहीं सीगा मेरा। केड़े वाले दोनों पार्ट नहीं हुए? हाँ जी सर, नहीं हुए। ओके. फिर मैं इतनी देर तक पूछ रहा ਸੀ तो गगन. सर वो मेरा माइक ही नहीं अनम्यूट हो रहा सीगा। माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है. चलो. एनीवेज, yes, answer is 3 for this. Answer is 3. ठीक है. सो ऊपर वाला क्वेश्चन है जो बच्चे कह रहे हैं नहीं हुआ. ये फर्स्ट. कैसे हुआ? हाँ जी. हाँ, तो ये सेम कैसे आया? सेम एज इट इज. जैसे पहले करे हैं दोनों अच्छा solve अच्छा करके. अच्छा, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है. सो फर्स्ट जो नहीं हुआ बच्चों वो देख लो. सेकंड, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही था शायद. नंबर फर्स्ट पार्ट वाज t 3/4 is 2 into t half. Let a naught be 100. ठीक है. At t equal to t 3/4. 3/4 means 3/4 of reaction is complete. 3/4 of reaction is complete. 1/4 बचेगा. 1/4 of 100, or you can say 100 minus 3/4 of 100. Okay. A is 25. वैल्यू पुट कर दो. K is equal to 2.303 by T 3/4 log A naught 100 by A 25 1 4. So K is equal to 2.303 by T 3/4 log 4. You can write 2 log 2. In fact बाहर ही लेके आते हैं. Write down like this: log 2 raised to the power 2. K is equal to 2 into 2.303 by T 3/4 log 2. ठीक है. और दूसरा, we already know what is T half. आज ड्राइव कर रहे हैं. T half is 2.303 by in terms of K, T half log 2. Make this equation 2, this equation 1. Okay. On comparing 1 and 2, 2 into 2.303 over T
3/4 log 2 is equal to 2.303 by t half log 2. जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो. log 2 2.3 2.3. सो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? t 3/4 2 into t half. अगर होपफुली क्लियर होएगा. या बाकियों का जिसका नहीं हुआ, थर्ड पार्ट एज इट इज सॉल्व करके देखना है, हो जाएगा. सर आ गया, समझ आ गया। हाँ जी बच्चे, जो 87 और 50% कंपैरिजन करने वाला है उसकी वैल्यू आई 3. इन केस वो भी किसी को नहीं समझ आया पूछ लो प्लीज. सर बता दो वो वाला। ठीक है चलो ठीक है, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ. अच्छा वो क्वेश्चन था दैट t 87.5% is equal to x times t 50%. ठीक है. Again start with considering a naught concentration. Let a naught be 100. ठीक है. At t is equal to t 87.5. What's the value of a? a क्या आ जाएगा? a is equal to 100 minus 87.5. It's 12.5. वैल्यू पुट कर दो. k is equal to 2.303 by t 87.5 log of 100 divided by 12.5. 12.5 log 100 सॉल्व करोगे सर log 8। 8. ठीक है. 2.303 t 87.5 log 2 raised to the power 3 और k आ जाएगा 3 into 2.303 by t. अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही हो रहा है तो. t 87.5 k log 2. This value student we can write t 87.5 is equal to 3 into t half. देख लो वो t half की वैल्यू ही है ना जो सर्कल करिए. नमीशा इज इट ओके? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं. फॉर दिस rate
rate of reaction. This we have done years हो जाएगा. लिखो फिर एक क्वेश्चन. Question is calculate T half of a first order reaction from their rate constant. For a first order reaction having rate constant K equal to 200 second inverse. Options लिखो. See? Options are 3.465 into 10 raised to power minus 4 second. Option B 3.465 into 10 raised to power minus 3 second. Option C 4.356 into 10 raised to power minus 3 second. D is 4.365 into 10 raised to power minus 3 second. कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट. डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड गेट द आंसर. फटाफट. सर ए ऑप्शन. ए. चलो ठीक है, बाकी एक बार ट्राई कर लो. एक आंसर आया मेरे पास, दैट इज ऑप्शन ए. ना मुश्किल है ये, जस्ट एक फॉर्मूला है छोटा सा. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के. इससे सॉल्व करने में इतना टाइम. 0.693 बाय 200. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन जो मेरे पास बुक है एक्चुअली ऑप्शन ए है नहीं है उसमें. देख लेते हैं, सॉल्व करो. सिर्फ यही क्वेश्चन है. सर नहीं, सॉल्व करके भी ऑप्शन आ रही है. बी आ रही है ना? यस सर, बी है. एक्चुअली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग तो बी आंसर है. दैट इज 6.33 सर 6.93 है. इसका 6.93. ठीक है, 0.693
693 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लो इंटू 10⁻1 माइनस 3, सो ये आएगा 3.465 इंटू 10⁻⁻3। पावर में कंफ्यूज हो गए हैं जिन्होंने रॉन्ग किया है। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। टिपिकल क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में वहां पे चलो। हाँ, क्वेश्चन 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 a first order reaction, a first order reaction has rate constant has rate constant 1.15 into 10⁻⁻3 second inverse. How long? How long will 5 gram of this 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram, reduce to 3 gram? ये क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूं बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट कैलकुलेट K in first step, ठीक है। in second step calculate T. so जो सॉल्व करेगा ऑप्शंस भी देख लो। 44.4 सेकेंड, B 88.8 सेकेंड, C 444 सेकेंड, D 888 सेकेंड। सो बहुत दूर दूर है आंसर है, आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। लॉग वैल्यूज मैं काउंट कर रहा हूं, आपको आती हैं लॉग वैल्यूज? नहीं आती? यू कैन रेफर टू लॉग टेबल। डन। ओके, इसमें तो टू स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। टी हैव की ओके,
डायरेक्ट ही हो जाना बच्चे, फर्स्ट स्टेप ही नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। के वैल्यू गिवन थी, आई थॉट हाफ लाइफ गिवन है। डायरेक्ट है ये तो, डायरेक्टली कैलकुलेट ही, जस्ट लॉग सॉल्व करना है। के तो गिवन है, दिस वैल्यू। कुछ साइंटिस्ट कुछ पहुंचा नजदीक कहीं? अच्छा निमिषा, कल वाले क्वेश्चन का क्या हुआ वो? मैं तो भूल ही गया था। लॉग टेबल हो गया सॉल्व? हाँ जी सर। कैसे पता लगेगा हो गया? सर जो लॉग था ना, मेरा जो पावर थी ना, वो मैंने पावर को ऊपर लिखा नहीं था। अच्छा, याद आ गया था? हाँ जी। चलो देखते हैं, ठीक है। फुल एग्जाम आज ही देना है, कर दो कंप्लीट। गैसियस स्टेट में डेरिवेशन करनी है अभी। लिखो फॉर्मूला फिर, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log A नॉट बाय A। साइमल्टेनियसली इस साइड कर रहा हूं। A नॉट क्या है? is 5 gram A naught. Okay, A is 3 gram. So T is equal to 2.303 by K. K is 1.15 into 10 raised to power minus 3 log 5 over 3। अब log 5 और log 3 की वैल्यू अगर तो लर्न है, बेस्ट है, नहीं पता सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 5 log 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। You got log 10 by 3 into 2, क्या आ जाएगा ये? log 10 minus log 3 minus log 2। 1 minus log 3 is 0.4771, log 2 is 0.3010। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखो, 0.2218। वैसे मैंने माइनस नहीं करा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, यही वैल्यू है, नजदीक होएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2.203 ओवर 1.15 into 10 raised to power minus 3 into 0.2218। सॉल्व करो इसे, आंसर इज 444 सेकेंड। पता नहीं आपने क्यों नहीं आंसर दिया, किसी ने भी, हो जाना चाहिए था ये। सर बस वो कैलकुलेशन में टाइम लग गया था, वैसे आ गया था। आ गया था, यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक। यस सर। चलो, एक टॉपिक की लास्ट डेरिवेशन है। Integrated rate equation for first order reaction।
in terms of pressure. अगर gases हो then it involve pressure. ठीक है, उस टर्म में एक डेरिवेशन करनी है. पहले जिन्होंने नहीं करा हुआ है नोट कर लो, करते हैं डेरिवेशन. डन. नेक्स्ट लिखो, लास्ट टू लास्ट ईयर 3 मार्क का न्यूमेरिकल आया इस पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे टीचर स्किप करते हैं इसे. इट इज इंटीग्रेटेड rate equation, integrated rate equation for first order gaseous reaction. Gaseous reaction. ठीक है, कंसिडर करो कोई रिएक्शन A in gaseous form, it changes to B gas plus C gas, decomposition reaction. ठीक है, initially at T is equal to 0, at T equal to 0, concentration किसकी होगी बच्चे? ओनली सॉरी, रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होएगा? ओनली रिएक्टेंट, और उसका प्रेशर ले लो, लेट इट बी P नॉट. ठीक है, साइड पे लिख रहा हूं P नॉट क्या है, वेयर P नॉट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ A. ठीक है, B और C होएंगे नहीं because only reactants are present at T is equal to 0. so उन्हें मार्क करो 0 0. ठीक है, at time equal to T, at any time, suppose P is the partial pressure of B and C is the partial pressure of C. दोनों का PP होएगा सेम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम ले रहे हैं. What will be the partial pressure of A at T is equal to T at some time? It will be P naught minus P. Okay, initial pressure P naught था minus P, जितना B और C में कन्वर्ट हो गया. ओके, टोटल प्रेशर at time equal to T. टोटल प्रेशर काउंट करके देखो बच्चे, at time is equal to T क्या होएगा? It is the partial pressure of gas A P naught minus P plus partial pressure of gas B plus partial pressure of gas C, because there is one container, all A, B, C are present in same container. ठीक है, closed container obviously. So total pressure is partial pressure of gas A plus partial pressure of gas B plus partial pressure of gas C. P naught plus P. This is the total
pressure. Okay, this one is the total pressure. Total pressure P T P naught plus P. Can I write PT? Okay, or P is equal to PT minus P. PT minus P. सर P नॉट का है P एक सेकेंड, P is equal to PT minus P naught. Yeah. बगैर कंसंट्रेशन बाजो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे K is equal to 2 पॉइंट, इसे नोट ना करना, मैं बुक से डिफरेंट करवा रहा हूँ थोड़ा, जो नीचे लिख रहा हूँ 2 मिनट रुक जाना. 2.303 by T log initial pressure, that is P naught, divided by final pressure. But final pressure, initial concentration, final pressure is P naught upon 2P naught. ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें 2P माइनस PT आएगी नहीं, P नॉट यहाँ तक ठीक है. फाइनल ठीक है, P नॉट 2P नॉट remaining concentration of reactant. Initial concentration of reactant P naught is okay. फाइनल जो बचेगी हो जाएगी PT माइनस P नॉट. ओके ठीक है. फाइनल इज P नॉट माइनस P initial pressure minus final pressure, just like concentration. इस साइड कंपेयर करो. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले रहे थे, जैसे इनिशियल ले रहे थे, इनिशियल इज सपोज 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती थी 100 माइनस कंज्यूम्ड, वही ले रहे हैं जितना बच गई. ठीक है, सो P यहाँ पे भी वही सेम चीज ली है बच्चे. P नॉट वाज इनिशियल प्रेशर, ठीक है, माइनस P इज द फाइनल प्रेशर. बचा कितना P नॉट माइनस P. वैल्यू पुट करो, T इज ओवर T log P नॉट over P naught minus PT minus T naught. वैल्यू पुट करिए, बिकॉज P is PT minus P naught. K is 2.303 by T log P naught divided by 2P naught minus P total. This. ठीक है, टर्म्स जरूर लिख लेना. वेयर P डॉट, फिर से P नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर. ओके, PT is
total pressure at time t. It is the total pressure at time equal to t. So sense में I think क्या है? Initial pressure minus final pressure. Basically formula यहीं से ड्राइव किया है, जो कंसंट्रेशन वाला भी था, सेम चीज. दोनों में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आ जाए, डेरिवेशन तो नहीं देखो कभी आई इसकी, बट हाँ न्यूमेरिकल जरूर आया है और काफी बार आया है, बट है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है. इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपकी मैथमेटिकल नॉलेज जितना कर सकते हो लॉग लेके, यू कैन सॉल्व इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन, आगे आगे आगे. ठीक है, बट उसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वो नहीं आएंगे. एक बार सॉल्व करके देखना फिर से, पी नॉट पी थोड़ा यूज टू होना टर्म्स के, दोबारा एक बार एक्सप्रेशन ड्राइव करके देख लेना. नहीं हुआ रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम लास्ट टॉपिक, बट ऊपर वाले टॉपिक में उससे क्लियर रखना बिल्कुल. ठीक है, उसकी असाइनमेंट सेंड करूंगा कल, अप टू हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, और जिनके टेस्ट है उनको कोई डाउट हुए तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी शॉर्ट कर लेंगे, उसमें डाउट पूछ लेना या फिर क्लास के बाद पूछ लेना, बट अच्छी तरह से प्रिपेयर करना. ठीक है गगन, करमन ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੀਟੈਸਟ? सर 16 है मेरे पूरे. बस तेरा नहीं है. ओके, करमन ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ठीक है, और फिर है किस ਦਾ? आई थिंक नन. ऑल क्लियर हो गए? चलो देखते हैं. ठीक है बच्चे, नोटेड.